Hello friends to Maxima Career Point. Today we are discussing curve tracing. How to trace the Cartesian curve. First we have to know about what is the working formula to trace the Cartesian curve. There are some points we discussed all points one by one. First point is symmetry. How to check the given curve is symmetrical about x-axis or y-axis. First point is symmetric. So start. A curve is symmetrical about the x-axis if the all power of y in the equation of the curve are even. For example, जैसे कि हमें गिवन हो कि कर्व को हम कब कहेंगे कि वो सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस है, जैसे कि उसका गिवन पावर ऑफ वाई जो इक्वेशन में ऑल द टर्म्स ऑफ वाई आर इवन पावर। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ओके, देन हियर वाई का पावर ऑलवेज इवन है और वाई का टर्म यहाँ पे और अवेलेबल नहीं है। अगर और कोई सा वाई का टर्म होता, अगर उसका पावर और रहता तो वो सिमेट्रिकल अबाउट एक्सिस नहीं बनता। मतलब कि कहने का मतलब यह होता है कि अगर जो हमारा कर्व का इक्वेशन हो उसमें ऑल टर्म्स ऑफ द वाई आर इवन, when all terms of the y are even, then we say the curve is symmetrical about x-axis. Okay, when one term is not even, all terms are even but one term is not even, then we cannot say the curve is symmetrical about x-axis. All the terms have to be even power. Then second point is how to check the curve is symmetrical about y-axis. A curve is symmetrical about the y-axis if all power of x in the equation of the curve are even. Means all the power of x in the given curve are even. Suppose the given equation is x square is equal to 4ay. Here the power of x is even and there is no any term other than x square. So all power of x is even. The given curve is symmetrical about x axis, where the given, ये देखिए हमारा फॉर्मूला है y square is equal to 4ay. This is the curve x square is equal to 4ay. Here the curve is symmetrical about y-axis. First we know how to check the symmetrical about x-axis. All the power of the given equation are even, then we say the curve is symmetrical about x-axis. Then the second point, how to check the curve is symmetrical about y-axis. When all the terms of the given curve are even, of the term of x are even, then we say the curve is symmetrical about y-axis. When the curve is symmetrical about y-axis, how to check? The curve is symmetrical about the line y is equal to x if the equation of the given curve remains unchanged. When we replace the terms, okay, y is equal to x and the power interchange, after interchanging the terms y is equal to x and x equal to y, then the given curve remains unchanged. Then the curve is said to be symmetrical about y is equal to x. Here y is y is equal to line x, sorry, here ये हमारा है x square plus y square is equal to a square. Here y is equal to x line is this and the given circle is symmetrical about y is equal to x axis. Okay, then how to check the given curve is symmetrical about other quadrant? If the equation of the curve remains unchanged, when we change to x minus x and y change to minus y, then the curve symmetrical to opposite quadrant. When we replace the terms of the sequence, when x is replaced by minus x and y is replaced by minus y, then the curve remains unchanged. Suppose here we put when the value of x is put to be minus x and the value of y is minus y, then the given equation remains unchanged. Y cube and x cube, first we put the values, then the curve remains unchanged. When we say the curve is symmetrical about opposite quadrant, here first quadrant, second quadrant, third and fourth, then opposite quadrant first and third and second and fourth, here the curve is symmetrical about opposite quadrant, that is first quadrant and third quadrant. Okay, we discuss about other point.
Our second point is origin. How to check the given curve is passes through origin or not. Okay, if the point 0 0 satisfy the equation of the curve, then the curve passes through the origin. When we put the value of the every term of the curve, when we put the all values, then the given curve satisfy the equation. Suppose ki given curve is x square plus y square is equal to a square. Okay, when put in 0 0, then we get 0 is equal to a square. We know the equation of the x square plus y square is equal to a square. Here we put all values, then the curve not passes through. How we know? Here equation is not satisfied. Okay, when equation is not satisfied, then the curve is not passes through the origin. अगर हम इसकी जगह पे और एक वैल्यू पुट करें, सपोज कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये हमने ये पढ़ रखा है, तो अगर हम यहाँ पे 0 0 पुट करते हैं तो ये किस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा? एक्स एक्सिस. ओके, हमने ये कर्व पढ़ चुका अभी. तो अगर हम 0 पुट करते हैं तो 0 इक्वल टू 0, हियर वी पुट, देन वी गेट 0 इज इक्वल टू 0. तो दिस कर्व इज पासेस थ्रू द ओरिजिन. ओके, थर्ड पॉइंट इज tangent at origin. How to check the given curve is tangent at origin? First we have to equate the least degree term of the equation to be 0. We have given, हमें एक इक्वेशन दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सपोज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y इज इक्वल टू 0. तो हमें चेक करना है कि वो कर्व टेंजेंट एट ओरिजिन बन रहा है या फिर नहीं बन रहा. तो वी पुट द वैल्यू लीस्ट डिग्री टर्म इज y. तो y को अगर हम 0 इक्वल कर दे, y इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा? हमारा x एक्सिस. तो ये हमारा टेंजेंट एट ओरिजिन बनेगा. ओके, देन इंटरसेक्शन विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस. हाउ टू चेक द गिवन कर्व इज इंटरसेक्ट द कोऑर्डिनेट्स. ओके, अबाउट एक्स एक्सिस को वो कट कर रहा है या फिर वाई एक्सिस को कट कर रहा है, हमें कैसे पता चलेगा? वी पुट एक्स इज इक्वल टू 0. व्हेन जब हमें जानना हो कि वो कर्व वाई एक्सिस को कब कट कर रहा हो, तो हम एक्स को 0 पुट कर देंगे. एंड जब हमें जानना हो कि वो एक्स एक्सिस को कब कट कर रहा है, तो हम वाई को 0 पुट कर देंगे. ओके, in the equation of the curve respectively, it gives point of the intersection of the curve on y-axis and x-axis respectively. When we put the value x is equal to 0 and y is equal to 0, then the curve, अगर हम x को 0 एंड y को 0 जब पुट कर दे, तो हमें जो उसका, जैसे कि सपोज कि x एंड y ये कार्टेशियन फॉर्म में रहता, तो जब हम वो इक्वेशन में x की जगह पे 0 पुट करते हैं, तो हमें गिवन कर्व में पुट करने के बाद हमें y की वैल्यू मिल जाएगी. तो हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, जब हमें पता चल जाएगी कि वो पॉइंट कब एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस को कट कर रही है. ओके, मैं आपको इसको प्रॉब्लम में करके बताऊंगी ताकि आपको सारे ये वर्किंग फॉर्मूलाज क्लियर हो पाए. ओके, आप ये पॉइंट्स का भी सुन लो. अगर समझ में ना आए कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर इसका नोट्स आपको ज़रूरत हो तो आप हमारे वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में गिवन वेबसाइट लिंक में जा करके आप ये नोट्स देख सकते हैं. ओके, तो चलिए उसके बाद वाला नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, एसिम्प्टोट. एसिम्प्टोट क्या होता है? मैंने इससे पहले वीडियो में आपको एसिम्प्टोट पढ़ाए सारे. हाउ टू फाइंड पैरेलल एसिम्प्टोट, ऑब्लिक एसिम्प्टोट, पोलर कर्व्स ऑफ द एसिम्प्टोट. मैंने 4 से 5 वीडियो बनाए, वो आप जा करके पहले देख लो अगर आपको दिक्कत हो रही हो. तो देखिए, मैं आपको थोड़ा सा हिंट्स दे देती हूँ ताकि आपको ये सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत ना आए. ए स्ट्रेट लाइन टचेस द कर्व एट इन्फिनिटी. जैसे कि हमें एक कर्व दिया हुआ, ओके, तो वो कर्व सपोज कि वो ऐसे गया, हमारा कर्व कुछ इस टाइप से गया. तो अगर हम उसका ये निकाले, क्या बोलते हैं, एसिम्प्टोट, तो वो इन्फिनिटी पे टच कर रहा हो. जैसे नहीं कि यहीं पे हमारा कर्व को टच कर जाए, तो वो लाइन को हम क्या कहते हैं? एसिम्प्टोट. हाउ टू फाइंड पैरेलल एसिम्प्टोट टू एक्स एक्सिस. हमने पढ़ रखा कि एसिम्प्टोट पैरेलल टू एक्सिस कैसे फाइंड करते हैं. इक्वेट द कोएफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स टू 0 इन द गिवन इक्वेशन ऑफ द कर्व. क्या करना हमें? कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर, जो एक्स का हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट को हम 0 इक्वेट कर देंगे, तो हमें एक्स एक्सिस के अबाउट पैरेलल एसिम्प्टोट मिल जाएगी. ओके, देन हम हाउ टू चेक एसिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस. सिमिलरली वी पुट द highest coefficient of the y to 0, then we get the parallel asymptote about y axis. ओके, तो उसके बाद हम एक पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं. अगर आपको एसिम्प्टोट में दिक्कत आ रही तो आप मेरी इससे पहले वाली वीडियो देख लो ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे कोई से भी कंसेप्ट में, क्योंकि कर्व ट्रेसिंग में
एसिम्प्टोट जानना बहुत ज़रूरी है, तो आप इससे पहले वाली वीडियो आप जा करके देख सकते हैं हमारे चैनल पे। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पे हमें कहा गया कि इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एवरी कर्व हैज एसिम्प्टोट। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम ये नहीं कह सकते कि एवरी कर्व, हर कर्व को हमें एसिम्प्टोट मिलेगा। जैसे कि हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये क्लोज्ड कर्व है, तो इसका एसिम्प्टोट हमें मिलेगा नहीं मिलेगा। ओके, तो हमारा लास्ट पॉइंट है रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस। हमें कैसे पता चले कि ये कर्व, जैसे कि हमें ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो हम इसे कैसे देख करके बोल सकते हैं, अगर हमें ट्रेस करना रहता कर्व तो हम इसे कैसे पता लगा कि इसी रीजन में एग्जिस्ट करेगा या फिर ये इस रीजन में क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा। तो हाउ टू फाइंड, तो वो पॉइंट देख लो। टू फाइंड द रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ द कर्व, सॉल्व द इक्वेशन ऑफ द कर्व। फर्स्ट हमें सॉल्व करना पड़ेगा इक्वेशन फॉर द वाई और एक्स। हमें उसको y के टर्म्स में एंड x के टर्म्स में, आपको जो सा इजी हो आप उस टर्म्स में वो कन्वर्ट कर लो, whichever is convenient. Suppose we solve the equation of curve for y. Suppose कि हमने y के टर्म्स में उसे सॉल्व कर दिया, then we examine the point। जैसे कि हमें कुछ भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर गिवन है, तो इसको अगर मैं x के टर्म में रिप्रेजेंट कर दूँ या फिर y के टर्म में रिप्रेजेंट कर दूँ। ओके, देन हम चेक करेंगे कि ये we find the value of x for which y tending to infinity। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि x की कौन सी वैल्यू के लिए y हमारा इन्फिनिटी पे टेंड कर रहा है। ऐसा तो कोई वैल्यू मिलेगा ही नहीं हमें कि ये इक्वेशन में हमें कौन सी वैल्यू पुट करने से हमें y इन्फिनिटी, तो ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ओके, तो हमें क्या रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस क्या मिलेगा, ये इन्फिनिटी पे नहीं जा रहा। वी फाइंड द इंटरवल फॉर एक्स विच वैल्यू ऑफ बिकम इमेजिनरी। तो हमें फाइंड करना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू के लिए हमें इमेजिनरी वैल्यू मिल रही। ओके, तो चलिए मैं आपको इसका कुछ एग्जांपल्स बता दूं ताकि आपके सारे कंसेप्ट, ये वर्किंग फार्मूला क्लियर हो पाए। ओके, तो देखो फर्स्ट कर्व है हमारा, मैं क्वेश्चन आपको दिखाती हूँ और आपको सारे पॉइंट्स, वर्किंग फार्मूला के सारे पॉइंट यहीं पे आपको डिस्कस करूँगी ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। ओके, तो चलिए हमारा फर्स्ट इक्वेशन है वाई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, ये हमारा गिवन इक्वेशन है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या था, सिमेट्री। तो फर्स्ट हमें सिमेट्री चेक करना पड़ेगा, सिमेट्री। ओके, सिमेट्री, तो सिमेट्री के लिए क्या करते थे, सिमेट्री के लिए हम देखते थे कि उसका ऑल पावर इवन है या फिर नहीं है। देखो यहाँ पे वाई स्क्वायर, वाई का टर्म यहाँ पे एक है और वो इवन है। ओके, और यहाँ पे देखो एक्स के टर्म क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर ये इवन है, ऑल टर्म्स ऑफ एक्स भी इवन है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, क्योंकि यहाँ के सारे टर्म्स इवन है। द कर्व is symmetrical about both axes because क्यों x and y पावर आर इवन। ओके, क्योंकि हमें यहाँ पे अगर हम x की जगह पे x और y की जगह पे एफ ऑफ माइनस एक्स और माइनस वाई पुट कर दे और हमारा इक्वेशन रिमेन्स, मतलब कि वो इवन ही आए, जैसे कि वो चेंज ना हो, तो वो एक्स एंड वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होगा। ओके, देखिए यहाँ पे हमने एक्स के ऑल पावर इवन है और वाई के ऑल पावर इवन है, तो ये बोथ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होगा। अगर y का ऑल पावर इवन होता तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होता, एंड x का ऑल पावर अगर इवन होता तो वो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होता। तो सेकेंड पॉइंट हमारा क्या था, ऑरिजिन। ओके, तो हम सेकेंड पॉइंट ऑरिजिन चेक कर लेते हैं। हाउ टू चेक, अगर गिवन कर्व में हम 0 0 पुट कर दे और वो इक्वेशन हमारा सेटिस्फाई कर जाए तो हम क्या बोलते हैं, वो गिवन कर्व हमारा ऑरिजिन से पास कर रहा। देखो जैसे कि हम यहाँ पे 0 0 पुट कर दे ये इक्वेशन में, हमारा इक्वेशन क्या, वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे पुट एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 0 0 और पुट करते तो क्या मिलेगा हमें, ये 0 इंटू समथिंग वो भी 0 इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर एक्स को 0 पुट कर इंटू समथिंग तो हमें क्या मिल गया, 0, बोथ साइड 0। तो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा, तो हमारा जो गिवन कर्व है वो हमें ऑरिजिन से पास कर रहा। तो हमें ये दो हिंट्स मिल गए कि वो सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस भी
और वो जो गिवन कर्व है हमारा क्या है, ऑरिजिन से पास कर रहा। और थर्ड पॉइंट क्या था, टेंजेंट। अगर वो द कर्व हमारा ऑरिजिन से पास कर रहा तो हम उसका टेंजेंट एट ऑरिजिन निकालेंगे। ओके, टेंजेंट एट ओरिजिन। ओरिजिन देखो, हाउ टू फाइंड टेंजेंट एट ओरिजिन। जैसे कि हम लीस्ट डिग्री टर्म को जीरो इक्वेट करते थे, तो लिखते हैं इक्वेटिंग लीस्ट डिग्री टर्म टू जीरो। ओके, देखो यहाँ पे हमें, देखो यहाँ पे अगर इक्वेशन को सॉल्व कर लिया जाए, वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा गिवन इक्वेशन है। इसे हम सॉल्व कर ले, वाई स्क्वायर ए स्क्वायर इज प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 4, ये हमारा इक्वेशन है। तो यहाँ पे देखो ऑल टर्म्स कौन से है, ये हमारा 4 डिग्री का टर्म है एंड ये हमारा 4 डिग्री का टर्म है। तो 2 डिग्री हमारा लीस्ट क्या होगा, हमारा 2 डिग्री का टर्म। तो देखो ये हमारा 2 डिग्री का टर्म है, ये भी हमारा 2 डिग्री का टर्म है, क्योंकि ये यहाँ पे ए कांस्टेंट है। तो हमारा क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर। ओके, तो देखो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो वाई की कौन सी वैल्यू हमें मिले, वाई इज इक्वल टू एक्स और वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो अगर हम इसे लिख सकते हैं y प्लस एक्स इंटू वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो। अगर हम इसे ले जाए वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, तो ये लिख सकते हैं, तो y इज इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू माइनस एक्स। तो हमारा जो गिवन कर्व है, सपोज हमारा कोई सा भी कर्व है, वो हमारा सिमेट्रिक होगा, ये वो एक्स एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक होगा और वो वाई एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक होगा। और y इज इक्वल टू एक्स उसका टेंजेंट एट ऑरिजिन बनेगी और y इज इक्वल टू माइनस एक्स हमारा टेंजेंट एट ऑरिजिन बनेगी। हमें इतना कुछ ये 3 पॉइंट सॉल्व करके हमें पता मालूम पड़ा है। अब हम बाकी पॉइंट सॉल्व कर ले ताकि पूरे कर्व का जो जो भी है हमें पता लग जाए। तो चलिए करते हैं। यहाँ पे देखो एसिम्प्टोट। ओके, उसके बाद हम चेक करते हैं एसिम्प्टोट। मैंने पढ़ा रखा था कि एसिम्प्टोट कैसे चेक करते हैं। तो हमारा इक्वेशन क्या था, सॉरी ये नेक्स्ट पॉइंट था, उसके बाद था इंटरसेक्शन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो हमारा फोर्थ पॉइंट था इंटरसेक्शन विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस। ओके, वो कर्व हमारा एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस को कौन कौन से पॉइंट पे कट कर रहा है हमें कैसे मालूम पड़ेगा। ओके, तो एक्स एक्सिस के लिए हम क्या करेंगे, वाई को जीरो इक्वेट करेंगे, तो पुट y इज इक्वल टू जीरो। ओके, जब हम y को जीरो पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा। तो हमारा इक्वेशन क्या था, हमारा इक्वेशन था वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो हमारे ये अगर हम y को जीरो पुट कर दे तो हमें क्या मिलेगा, इस साइड जीरो हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो हमें x की कौन कौन सी वैल्यू मिली, x को हमारा मिला x इज इक्वल टू जीरो और x इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू माइनस है, क्योंकि अगर हम ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को जीरो पुट कर दे तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स की कौन सी वैल्यू मिली, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस है। ओके, तो हमें 3 पॉइंट मिला, जैसे कि हमें क्या क्या मिला, जीरो जीरो, जीरो कॉमा ए और जीरो कॉमा माइनस है। ये कर्व हमें जीरो जीरो पे कट कर रहा है और जीरो ए पर एंड जीरो माइनस ए पर कर्व कट कर रहा। अब हम चेक करते हैं कि वो वाई एक्सिस पे कब कट कर रहा। पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो, वाई एक्सिस के लिए हम वाई एक्स को जीरो पुट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, वाई स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू ये हमारा जीरो हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, तो वाई इज इक्वल टू जीरो। जब हम एक्स को जीरो पुट करें तो वाई भी जीरो मिला, तो एक्स का वाई क्या मिला हमें, जीरो जीरो। तो वाई एक्सिस पे वो जीरो जीरो पे कट कर रहा है। ओके, हमें इतना कुछ आइडिया मिल चुका। तो चलिए हम ड्रॉ कर लेते क्या क्या हमें मिला है अभी तक का। ओके, हमें ये मिला कि वो सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एंड वाई बोथ एक्सिस होगा एंड वो उसका टेंजेंट एट ओरिजिन क्या, y इज इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू माइनस एक्स। और हमें क्या मिला कि हमें जीरो जीरो पे वो कर्व कट करेगा
एंड ए कॉमा 0 पे, 0 कॉमा ए पे एंड 0 कॉमा माइनस ए पे वो गिवन कर्व कट करेगा। तो हम देख लेते हैं कि वो, सॉरी मैंने यहाँ पे उल्टा लिख दिया, यहाँ पे ए कॉमा 0 और माइनस ए कॉमा 0, क्योंकि हमने y को 0 पुट किया था। तो ये ए कॉमा 0 एंड माइनस ए कॉमा 0। ओके, इतना हमें आइडिया मिल चुका। अब हम देखते हैं उसका एसिम्प्टोट मिलता है ना नहीं, या फिर इन्फिनिटी पे वो कर्व टच करेगा या फिर नहीं करेगा, हम देख लेते हैं। तो एसिम्प्टोट फाइंड करते हैं। कैसे एसिम्प्टोट फाइंड करते हैं? हाईएस्ट डिग्री टर्म को हम लोग 0 पुट करते हैं, देन देखते हैं कि उसकी कॉफिशिएंट क्या है। तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या है? अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर दे, वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 4। तो यहाँ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स क्या है? एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स टू द पावर। अगर हम इसे 0 पुट कर दे, देन इसका कॉफिशिएंट क्या है? -1। तो अगर हमारा कॉफिशिएंट -1 मिले तो हमें एसिम्प्टोट एग्जिस्ट नहीं करती। सिमिलरली अगर हम y के हाईएस्ट डिग्री टर्म देखें, क्या है हमारा? वाई स्क्वायर, तो हम इसे कॉमन ले लेते, वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो क्या मिला हमें? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, तो एक्स इज इक्वल टू ऐसे हो जाएगा। तो ये क्या हमें इमेजिनरी आयोटा फॉर्म में मिलेगा, ये हमारा इमेजिनरी वैल्यू मिलेगा। तो अगर हमें कांस्टेंट मिले या फिर इमेजिनरी वैल्यू मिले तो हमारा एसिम्प्टोट एग्जिस्ट नहीं करता है। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बता रखा है, अगर आपने नहीं देखा तो वो आप जा करके देखो ताकि आपको आइडिया हो सके। तो हमारा गिवन कर्व कुछ इस टाइप का होगा, मतलब वो ये एक्सिस को टच कर रहा होगा क्योंकि ये एसिम्प्टोट है, और ये इधर इधर सेम होगा और ये इधर इधर भी सेम होगा, मतलब वाई एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्री होगा और एक्स एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्री होगा। तो देखो ये एक्स एक्सिस को कुछ जैसे कि हमारा, देखो ये टच करता हुआ ये यहाँ से इस पॉइंट को कट करेगा। ओके, तो ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, तो वो इस साइड भी आएगा। ओके, और ये वाई एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्री, और ये इस पॉइंट पे भी कट कर रहा है, तो ये हमें मिल गया। ओके, तो देखो ये हमारा कर्व मिला है। ओके, तो हम देख लेते कि अगर ये कर्व और किसी रीजन में एग्जिस्ट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, क्योंकि हम रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं तब हमें पता लग जाएगा कि एक गिवन कर्व हमें हमारा इस रीजन को छोड़ के और कहीं पे भी हमारा कर्व एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो देखिए मैं आपको रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस बताती हूँ। देखो यहाँ पे रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस देखो, तो हम y के टर्म में या फिर x के टर्म में ले आएंगे तो हमारा क्या मिला? हमें हमारा इक्वेशन था, देखो यहाँ पे हमारा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखना आपको कौन से टर्म में कन्वर्ट करने में इजी हो रहा, आप वैसे ही सॉल्व करना। तो देखो यहाँ पे y के टर्म में लाने में मुझे इजी होगा तो मैं उसे ही सॉल्व कर लेते, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर हमारा ये है तो हम इसे रूट ओवर ले लेंगे, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का रूट ओवर एक्स, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, ये हमें y की वैल्यू मिल गई। अब हम वैल्यूज पुट करके देखते हैं हमारा वैल्यू कब हमें रियल वैल्यू मिल रहा है। ओके, तो देखते हैं कौन कौन से रीजन में हमें रियल वैल्यूज मिल रही है। तो फर्स्ट हम पुट करते हैं, हमें कितना मिला? हमारा कर्व ये कुछ इस टाइप्स का एग्जिस्ट किया था, देखो यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, और वो ऐसे ऑरिजिन से पास होकर के इस टाइप्स का था। तो ये था हमारा a कॉमा 0 और माइनस a कॉमा 0 और 0 0। ओके, तो देखते हैं ये कुछ इस साइड का हम पॉइंट पुट करते हैं a को छोड़ करके, और इस साइड का पॉइंट पुट करके देखते हैं कि वहाँ पे कर्व एग्जिस्ट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। तो सपोज कि हम 2a पुट कर देते, तो हम अगर x इज इक्वल टू 2a पुट कर दे, x इज इक्वल टू 2a, तो y क्या हो जाएगा हमारा? y देखो, अगर हम x की जगह पे 2a पुट कर दे 4 स्क्वायर, तो माइनस ये हमें क्या मिल जाएगा? इमेजिनरी वैल्यू मिल जाएगा, और x की जगह पे हम a पुट करें। ओके, ये पॉइंट देखो हम पुट करके देखते हैं तो क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू 0। तो ये हमें रियल वैल्यू मिल रहा है। जब हमें रियल वैल्यू मिले तो वहाँ उस रीजन में हमारा कर्व एग्जिस्ट करेगा, और अगर हमें इमेजिनरी वैल्यू मिल जाए तो वहाँ उस रीजन में हमारा कर्व एग्जिस्ट नहीं करेगा।
सिमिलर एक्स इज इक्वल टू, अगर हम 0 पुट करते हैं तो एक्स की जगह पे हम अगर 0 पुट कर दें तो वाई क्या मिलेगा हमें, ये स्क्वायर बाई स्क्वायर 1, 1 का रूट ओवर 1, तो ये रियल, तो हमारा 0 पे भी ये हमारा एग्जिस्ट करेगा। ओके, अगर हम x की जगह पे माइनस से पुट कर दें तो देखो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो y हमारा 0, ये भी रियल वैल्यू में मिल रहा, तो हमें तो पता चल गया कि माइनस है और a के बीच में हमारा कर्व एग्जिस्ट कर रहा। अच्छा, x इज इक्वल टू -2 अगर हम पुट करते हैं तो देखो क्या हो जाएगा हमारा y हो जाए, अगर हम यहाँ पे पुट कर दे माइनस स्क्वायर तो क्या मिलेगा, ये इमेजिनरी वैल्यू हो जाएगा माइनस समथिंग, तो ये हमें इमेजिनरी वैल्यू मिलेगा। तो हमें ये पता चलेगा कि इस साइड भी और इस साइड भी हमारा कर्व एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो ये हमारा कर्व ट्रेस हो गया। ओके, अब आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया हो कि हम कैसे ये जो हम 7 या 8 पॉइंट्स हमने जो लिखा है वो हमने प्रूव किया। ओके, 4, ये 5 हमारा एसिम्प्टोट एंड 6 पॉइंट वो हमारा रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस। तो आपको सारी वर्किंग फार्मूला क्लियर हो गई होगी और आप समझ गए होंगे कि हाउ टू ट्रेस द कर्व। मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में और कुछ प्रॉब्लम्स आपको कर्व ट्रेसिंग के ऊपर करवाने वाली हूँ, देन हम पोलर कर्व को कैसे ट्रेस करते हैं वो पढ़ेंगे, तो हमारा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स लोग को शेयर करें ताकि वो लोग भी हमारे वीडियो देख पाएँ, और हम बीएससी के सारे फ्री वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप किसी भी कोचिंग में ज्वाइन करने की ज़रूरत ना पड़े, आप हमसे डाउट्स भी पूछ पाएँ, बस इसीलिए आप अपने फ्रेंड्स लोग को भी शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना करें, और अच्छा लगे तो कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।